Alright, end of show day 1 at ICN Hyderabad 2025, and that last overall competition is one of the longest drawn out competitions I've ever seen. And honestly, what was it like, Abhishek, to be there, standing there, competing with all those athletes? So it was my first competition. I wanted to win the hammer, but for some reason वो नहीं हो पाया. But कोई बात नहीं, next shows हैं. I'll be competing in WNBF and I guess next year मैं फिर से ICN भी compete करूँगा. The prep and journey was really good क्योंकि मैंने एक longer cut करा था. For 5-6 months I was cutting. Last के 2 महीने में I was working with Farhan and मैं बता नहीं सकता कि उसने मेरी कितनी help करी है इस चीज़ करने में. He was monitoring my weight. मैं ही नहीं बल्कि all the well-versed athletes जिनको train कर रहा है उनके साथ भी ये था कि monitoring weight कर रहे हैं and then changing the diet. And I guess आप देख ही रहे होंगे जितने भी एथलीट्स ये लेके आया था, everyone was shredded to the bone. And I guess मैं भी वहाँ पे स्टेज पे I guess after one guy I was the most conditioned, but because this is my first competition और वो posing इतनी nail down नहीं हो पाई. I guess वो था एक reason probably कि मैं pro card नहीं जीत पाया, but there is always another chance. So let's talk about what was happening on stage, right? Okay. So as you said, I thought personally too that you were one of the most conditioned people out there. But what has this taught you about posing, the importance of posing in bodybuilding, and when did you start posing? I started posing roughly 6 days back. I came to Farhan's residence earlier and then we started practicing posing. Are you saying 6 days back? Yes, before that I didn't practice any posing. Yes. And अभी लीन होके मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने मेरा कंटेंट देखा होगा, इट्स बेसिकली कंपाउंड लिफ्ट्स. मैं घर में ही कर रहा होता हूँ. तो अभी हम बाइंग केबल मशीन बिकॉज अभी मुझे लगता है कि लैट्स के लिए एंड देन ये रियर डेल्ट एंड लैटरल और हैमस्ट्रिंग वर्क के लिए आई नीड अ मशीन. तो अब जो भी नेक्स्ट शो होगा आई विल बी मच इम्प्रूव, मच कंडीशन बिकॉज नाउ आई नो क्या है. और जैसे आपने पूछा कि पोजिंग के लिए आप क्या मतलब आपको लग रहा है अभी, तो मुझे लगता है कि व्हेन यू नो हाउ टू पोज एंड देन आप कॉन्फिडेंट हो तो वो स्टेज पे कॉन्फिडेंस दिखता है. आई गेस जिन भी एथलीट्स की पोजिंग अच्छी थी उनको आपने देखा होगा, दे वर कॉन्फिडेंट. आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, बट जैसे ही मैं ओवरऑल में आया तो आई वाज लाइक फीलिंग द क्राउड ना. तो मेरे को ऐसा लगा कि जो भी है वो है, आई जस्ट डू माई बेस्ट एंड देन आई गेस आपको लगा होगा कि फ्रॉम विनिंग दिस एंड देन ओवरऑल में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई भी हो गया था एंड देन आई वाज जस्ट पोजिंग अराउंड. I was just happy to be there with the best athletes. You know what I love about you, bhai? You are so good at what you do, but you're still so humble. And honestly, I really like the mindset that you just know exactly what went wrong and you're not like, scared enough to admit it. And one thing I'd like to ask is that you are a coach yourself. You run Primal Movement, right? Yes, sir. Yes, bhai. I have done my research. So, how is it being a coach and then getting a coach for yourself? I guess होता क्या है कि when you're a coach, you're handling so many people. आपको पता चल जाता है कि किसका क्या चीज़ है, वो कब झूठ बोल रहा है, कब नहीं बोल रहा है. तो बेसिकली आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो. आप उनकी थेरेपी भी कर रहे होते हो कि हाउ कोई बात नहीं, ये गलती होगी तो आप कैसे कर सकते हो. एंड देन यू अंडरस्टैंड पीपल बेटर क्योंकि इतने सारे लोग अगर आप कोच कर रहे हो तो आप देख के बता सकते हो इसने क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है. बट प्रेप के साथ ऐसा होता है कि लास्ट के 1 महीने में you can make mistakes because you're low on calories, low on food. तो आपको लगेगा कि नहीं इतना खा लेता हूँ तो सही है. तो it's always better to get a coach at the end of your prep especially. कि लास्ट के 1 महीने में आप किसी और को दे दो and just trust the guy. और मैं तो भाई को ही ट्रस्ट करता हूँ, फरहान भाई को. तो मैंने बस उसे बोल दिया कि भाई तू जितना बोलेगा मैं उतना खाऊँगा, तू बोलेगा इतना पानी पी मैं उतना पीऊँगा. बट मैं जितना खा रहा हूँ ना, इसने मुझे छुपा रखा था कि भाई आप ना बाकी सबके सामने मत खाओ कि बिकॉज मैं खा रहा हूँ एंड देन मेरा वेट गिरे जा रहा है. Really? हाँ, बिकॉज वो कह रहे हैं कि बिकॉज यू वो कंपाउंड लिफ्टर्स, मतलब पावर लिफ्टिंग भी करी आपने, ये सब भी करी है, तो उस वजह से आपकी मसल्स डेंस हैं एंड दे डिमांड मोर कार्ब्स. और यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि विद प्राइमल मूवमेंट आई फोकस ऑन जस्ट 2 meals a day, विच मीन्स एवरी क्लाइंट ऑफ माइंड मैं चाहता हूँ कि इवेंचुअली वो 2 meals पे आ जाए. तो बिकॉज नाउ दे कैन इन्जॉय लाइफ. 5 meals खाने वाला इन्जॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कहीं घूमने जाना ही करना है. और ये पूरी प्रेप भी मैंने 2 meals a day पे करी है. उसको नहीं बता रहा था मैं. I was just combining 2 meals because I have a big Now they know because I have a big appetite. तो मेरे को वैसे खाना पड़ता है. और मैंने सिर्फ होम जिम में करी है
तो इससे मैं एक और चीज़ बताना You trained for the entire prep at your home gym? Yes, just using a barbell and a dumbbell. तो usually क्या होता है कि जो बच्चे नए आ रहे होते हैं, maybe they are not financially that strong, तो उनको लगता है कि यार अगर हमारे पास एक expensive gym membership होती तो शायद हम वर्ल्ड क्लास फिजिक बना सकते थे. बट मैं हूँ एग्जाम्पल इन द सेंस कि आयरन इज़ जस्ट साइंडेड, वेट इज़ जस्ट वेस्ट. फिर चाहे वो एक्सपेंसिव जिम में हो चाहे लोकल जिम में हो, अगर आपके लोकल जिम में इनफ वेट है फॉर यू टू प्रोग्रेस, तो आप सिर्फ एक बार और एक डंबल से भी स्मार्टली वर्क करके एक वर्ल्ड क्लास फिजिक अचीव कर सकते हो. यू डोंट नीड, ऑफ कोर्स यू नीड मनी फॉर प्रोटीन इनटेक, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, बट यू डोंट नीड अ एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप. यू जस्ट नीड द ड्राइव एंड विल टू जस्ट get yourself all in. Why is it that you don't join a gym, like you haven't joined a gym right now, even though you clearly have the resources to? Yes. You have still decided to do like gym at home. भाई मैं ना अपना कंटेंट सिर्फ वर्कआउट एंड स्ट्रेंथ एंड देन आई प्ले अराउंड इट, एंड देन मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे टेक्स्ट ओवरलेस करके ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ. आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. बहुत लोग मेरे को पुश कर रहे हैं, बट मैं करूँगा. मैं रील्स भी नहीं बोलूँगा, बट आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. बट मैंने ये स्टार्ट इसलिए करा बिकॉज एक स्टोरी है उसके पीछे. मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए हैं. आई वॉज 83-85 kgs एंड देन आई गॉन बैक टू लाइक 52 ट्वाइस. हाँ, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम हुआ एंड देन आई स्टार्टेड जिमिंग अगेन. ये क्लैविकल बोन टूटी है, ये फ्रैक्चर हो रखा था, यहाँ पे बैक में पूरा मसल टियर हो रखा था, एंड मैंने फिर से जिम स्टार्ट करा. मेरे को वो आई रोल्स पसंद नहीं है जो लोग देख रहे होते हैं ना कि 83 kg था अभी 52, बेचारा वाली वो सिंपैथी वाली वो पसंद नहीं है. इसीलिए चीज़ मैंने कभी वीडियोस में भी यूज़ नहीं करी कि आई शो मतलब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं कि मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए वो सिंपैथी आई रोल्स. सेकेंड टाइम हुआ तो आई वाज लाइक आई कांट गेट दोज आई रोल्स अगेन. तो मैंने बस होम जिम पे सेटअप डाल दिया और मैंने उसी से वापस अपनी फिजिक बनाई. बस यही उसकी स्टोरी है कि मेरे को सिंपैथी नहीं पसंद है इतनी. आई जस्ट वांट कि भाई ये है. और क्लैरिफिकेशन दे दूँ, वो जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं आउटसाइड जिम हुए हैं, इनसाइड जिम कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. इफ़ यूर ट्रेनिंग विद गुड फॉर्म एंड टेक्निक, इफ़ यूर ट्रेनिंग हैवी, इफ़ यूर ट्रेनिंग इन फुल रेंज ऑफ मोशन, कभी नहीं हो सकती इंजरी वगैरह. और फिर आपने अगर मेरी लिफ्ट देखी है तो मैं बेल्टलेस ही करता हूँ बिकॉज आई कैन एंगेज माई कोर. So you heard it from Mr. Primal Movement himself. So inspiring, man. It was so nice talking to you. Thank you. And you know what? I know you're gonna come back and you're gonna kill it. Yes, of course, I'm going to come back. All the best, man. All the best. Thank you. Thank you.